बहुत बार हम दूसरे लोगों के बारे में बात करते हैं उनकी एब्सेंस में और फिर हम सोचते हैं उसे क्या पता लगेगा कि हम उसकी बात कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि हर वक्त कोई घर का भेदी हो, दीवारों के भी कान नहीं होते। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी के पीठ पीछे बात करने से उस व्यक्ति तक हमारी बात पहुंच जाती है? How is it even possible? If you are wondering like this, then let me tell you. Yes, this is practically possible. Our vibrations travel faster than our words. How immediately they travel? That depends on the intensity of your emotions. When you talk or think about a person, you emit your energy along with that, which ultimately takes shape of vibrations and it reaches to that person for sure. There is no need of telephone or email to transfer your message because these vibrations are so strong that they need no mode of communication. तो अगली बार ध्यान में रखें, आप किसी के भी बारे में बात करेंगे, अच्छी या बुरी, तो वो उस तक पहुंच ही जाएगी। और बुराई करने की ही ज़रूरत कहाँ है? अच्छा भी तो कह सकते हैं। ज़रूरी तो नहीं किसी की कमियों को पब्लिकली सबके सामने कहा जाए, उसे केवल नेगेटिविटी ही फैलती है। यहाँ हमने बात की जहाँ हम शब्दों से किसी के बारे में बात करते हैं जिसे कंट्रोल किया जा सकता है। एक चीज़ है जो अनकंट्रोलेबल है और वो है हमारे थॉट्स। जब हम किसी को याद करके कुछ सोचते हैं, let us understand this through an example. I'm always worried for my younger sister's studies because I want her to score more and more every time. I can justify my concern by saying that I care for her. That is why I am worried. But this will truly separate me and my sister in some form or the other. But how is this possible? I am just being protective. I'm sorry folks, but I am transmitting low energy vibrations to my sister. Tension, stress, anxiety, over-possessiveness, all these are low energy words. And if I am constantly surrounded by these, my sister will automatically get these. She will not be positively connected with me. कहीं ना कहीं वो मुझसे दूर रहने की कोशिश करेगी क्योंकि उसे मुझसे चिंता, फिक्र, दुख जैसी वाइब्स मिलेंगी। उसे लगने लगेगा कि मैं उसके लिए ज़्यादा ही चिंतित हूँ, जिसकी वजह से वो दुखी होने लगेगी। और जो उसकी पढ़ाई अच्छी चल रही थी, वो मेरी वजह से डिस्टर्ब होने लगेगी क्योंकि मैं उसे चिंता और इम्पेशेंस वाले थॉट्स भेजती हूँ। Whether you believe or not, but this actually happens. Unintentionally or out of concern, we keep on thinking about the concerns of our dear ones, and we don't realize how our thoughts and caring approach turn into negative vibrations because we simply overdo them. ऐसा कितनी बार होता है कि आप किसी के बारे में सोचते हैं और उसी टाइम उस व्यक्ति का कॉल या मैसेज आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी वाइब्स इतनी स्ट्रांगली ट्रैवल करती हैं कि पलक झपकते ही ऐसा हो जाता है। तो जब आप बार बार चिंता वाले थॉट सोचेंगे तो ये कहीं ना कहीं उस इंसान को अफेक्ट करने लगेगा। अगर वह पेशेंस या धैर्य बना के भी चल रहा होगा तो आपके इम्पेशेंस और डेस्परेशन उसे परेशान करने लगेंगे। So instead of overthinking or being worried about someone's situations, try giving your blessings and good wishes. Try saying like this, my dear friend, I wish you all the goodness and happiness of life. I know you are facing hell lot things and I am sure you will overcome all of them easily. I give you all my patience and faith that can help you achieve your results. I will be with you every time. I will not suffocate you more. Rather, I will help you to lessen your burden. May God bless you with immense strength to face this, and we will celebrate together after all this ends.
और अब से जब भी आप ऐसा सोचें, अरे मेरी फ्रेंड इतनी दुखी है, वो ऐसा क्यों नहीं करती, मेरा भाई सीरियस क्यों नहीं होता, मेरी बहन समझती क्यों नहीं है कोई बात, तो प्लीज़ आप इन थॉट्स को रिप्लेस कर दें उस दुआ से जो आपने अभी सुनी, क्योंकि उसमें सिर्फ पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं जो हर तरह से अप्रोप्रिएट हैं। किसी की फ़िक्र करना ठीक है, लेकिन ज़्यादा फिक्र करने से आप उस इंसान को तकलीफ़ देते हैं और वो आपसे दूर होने लगता है। हम ये तक कह देते हैं, तुम्हारी तकलीफ़ मुझसे देखी नहीं जाती, अब मेरा संयम ख़त्म हो रहा है। आप सोचिए उस इंसान को कैसा लगता होगा, क्योंकि उसे अपनी प्रॉब्लम के साथ अब ये भी संभालना होगा कि वो आपको दुखी ना करे, उसकी प्रॉब्लम्स की वजह से आपको तकलीफ़ ना हो, और इससे तो उसकी तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन अगर आप अपना पेशेंस, सब्र, हिम्मत उसे देंगे, शायद उसे सही मदद मिलेगी जिसकी उसे सच में ज़रूरत है।